Hello student, today we are going to play a guessing game. So we are going to guess which animal is big, which is small, which animal can fly, which can crawl, which animal has bones and which has no bones. Can you answer all this? So today we will learn the secret group of animal, that is vertebrates and invertebrates. So student, please touch your back. Can you feel a bone line there? Yes, that is your backbone. Now tell me, do fish have a backbone? Does a snake have one? Does an ant have one? So today we will solve this mystery in our chapter, and the name of the chapter is Types of Animals. So are you ready for that? So let's read line by line what is written here. Why it is important to learn. Why it is important to learn what? We group animal around us that is easy to learn more about them. And animals are grouped based on what they have in common. We must therefore learn about different types of animals. Okay. Warm up. There are so many animals around us that it becomes difficult to learn about them one by one, so we group them. So do you know the names of different group of animals? Tell me. Okay, let's play a little pyara game. Can you name 10 animals in just 10 seconds? Okay, I will start. Dog, cat, cow, lion, fish, bird, ant, snake, elephant, frog. Oh wow! So many animals around us, you know? But wait! There are thousands of animals in the world. Now you tell me, is it easy? Is it easy to study these so much animal one by one? No, absolutely no. So that is why scientists group animal based on their common feature, okay? So today in this chapter, this exciting chapter, we will learn different type of animal and discover what? Which animal have backbone, which animal do not have backbone, and how animal breathe, how animal move. So these are the things which we are going to discover. So get ready to enter the amazing world of animals. So let's do a little warm up. Tell me 5 animals you saw this week in the comment section. Second question, which animal can fly? Comment please. Which animal can crawl? Which animal live in water? And my last question to you, which animal has no legs? So who have given the answer? Excellent. Now let us classify them. Now open your science book, page number 18, and start reading. Okay. So let's read everything first, line by line. What is written here? We can group animal in many ways. Let us learn about one type of grouping based on backbone. Depending on whether animal have a backbone or not, they can be grouped into 2 major types. And the major types are invertebrates, means animal without a backbone, and vertebrates means animal with a backbone. Okay. So what are invertebrates? Look, real world connect. The backbone is also called the vertebral column. So animals such as insects, spider, crab, jellyfish, starfish, worm and snail are grouped together as they do not have a backbone. Animals that do not have a backbone are called invertebrates. Look, this is crab, this is jellyfish and this is grasshopper. इनके पास रीढ़ की हड्डियाँ नहीं हैं. Okay, so these are invertebrates. Student, once again, touch your backbone. Can you feel a hard line of bones? So that is called backbone, vertebral column. Okay, this word, it is written here, vertebral column. It is the same backbone. But do you know something amazing? Many animals like this do not have backbone. Okay, at all. They do not have. So we are going to learn today about these little creatures. There are so many examples you can see which is given here.
ओके, सो आपकी बुक में अभी तक क्या गिवन है, दैट वी कैन ग्रुप एनिमल इन मैनी वेज. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन मैनी वेज वी कैन ग्रुप एनिमल इन मैनी वेज. दैट मीन्स एनिमल कैन, इसका मतलब क्या, मैनी वेज का मतलब क्या, इट मीन्स दैट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू different groups like on the basis of their food habit, carnivorous, herbivorous, ये सब सुना है. तो वो फूड हैबिट के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है, कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स. और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बाय देयर बॉडी कवरिंग और बाय बैकबोन. तो आज हम बैकबोन से डिवाइड करेंगे एनिमल्स को. So based on the backbone, today we are grouping the animal. As you already know, they do not have a backbone or do they have a backbone. इस बेसिस पे हम invertebrates और vertebrates में क्लासीफाई कर रहे हैं. दो मेन टाइप हमने पढ़ा है, तो हम vertebrates किनको बोलेंगे, animal that have a backbone like dog, like bird, snake, fish, cow. Invertebrates, animal that do not have a backbone, वो invertebrates like as you can see here in the picture. काफी सारे animals आपको दिए गए हैं, है ना. Okay, now look. So backbone क्या होती है, backbone आपने टच किया, हाँ मैं समझ गई कि आपको पता है ये backbone है. बैकबोन एक लॉन्ग चेन होती है, स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द बॉडी. ये सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को एंड हेल्प अस टू मूव. ह्यूमंस में, डॉग, कैट, इन सब के पास बैकबोन होती है, लेकिन इन एनिमल्स के पास, बेचारों के पास नहीं होती. नहीं बेचारे तो क्या है, गुड, ये भगवान ने बनाए हैं उस हिसाब से है भैया. ओके, तो यहाँ पर देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, many invertebrates live in and around water. live in and around water. इसको लाइन अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे many invertebrates लिखा है. ओके बच्चों, मतलब जिनके पास हड्डियां नहीं है, यानी कि द एनिमल विदाउट बैकबोन. बहुत सारे एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं है, दे लिव इन और अराउंड वाटर, या तो पानी में रहेंगे या पानी के आसपास रहेंगे. इन मतलब इनसाइड वाटर, इन मतलब इनसाइड कहना चाहते हैं ये, और अराउंड का मतलब नियर बाय, नियर वाटर एरिया. आप जैसे कि पॉन्ड में मिलेंगे ये एनिमल्स आपको, कहाँ मिलेंगे, और रिवर्स में मिलेंगे, और कहाँ मिल सकते हैं, लेक्स में मिलेंगे. ओके, सी है ना, सी शोर, समुद्र के किनारे पे मिलेंगे ये एनिमल्स आपको. सो अगली लाइन देखते हैं. स्टार फिश एंड जेली फिश लीव अंडर वाटर. स्टार फिश और जेली फिश कहाँ पे रहती है, लीव्स अंडर वाटर. ओके, सो अंडर वाटर मीन्स इनसाइड वाटर, है ना. इसका मतलब हुआ स्टार फिश एंड द जेली फिश लिव इन द सी और ओशन. Okay, after that, some invertebrates lives on land too. Some invertebrates live on land too. So, not all the invertebrate live in water. सभी के सभी बिना रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स पानी में नहीं रहते, कुछ जमीन पर भी रहते हैं, जैसे कि worm, insect. यहाँ पे मैंने लिखा था, all नहीं लिखा था. ओके, तो worms, insect, spider ये लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं. ओके, स्नेल भी आएगा इसमें. सो मैनी ऑफ दीज एनिमल हैव स्पेशल वे टू ब्रेथ एंड मूव. सो वर्म, इंसेक्ट, स्पाइडर ये लैंड पे रहते हैं, मीन्स दीज एनिमल आर यूजुअली फाउंड इन सोइल. लैंड में क्या क्या आएगी, मिट्टी आ गई, गार्डन आ गया आपका, आपके गार्डन में मिलेंगी ना ये, या फिर आपकी दीवारों पे भी मिल सकते हैं ये एनिमल. ओके, और कहाँ मिल सकते हैं, बताओ बताओ बताओ. आपके प्लांट, आपके पौधों के अंदर भी होते हैं, के ऊपर कभी कभी कीड़े जो होते हैं ना, और हाउस फ्लाइज. many of these animals have different way of breathing. ओके, इसका मतलब क्या, पहले तो ये बात बताओ आप, ब्रेथ का मतलब क्या, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो ये प्रोसेस होती है ब्रेथिंग. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज एनिमल डू ब्रेथिंग एंड मूवमेंट इन डिफरेंट वे. कैसे मूव, go from one place to another place is movement, है ना. so these animal have different way of moving and breathing. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, क्या लाइन है,
Tell me. These animals move from one place to another place to find food, shelter or to escape from their enemies. सबसे important है line by line. Find food. So in search of something to eat, they move. Shelter. Shelter मतलब safe place to live or hide. Escape from enemies. Escape means to run away, to save themselves. So enemies are those animal which may harm or eat them up. So we can say the animal move because they need food, they need safe place, they need to save themselves from danger. That's why they move. Okay. उसके बाद देखो, there is a heading there, breathing in some invertebrates. Breathing in some invertebrates. So this heading tell us how some animal without backbone breath. Insect breath through tiny holes. उसको हम क्या कहेंगे? We will say spiracles. Spiracle present along the side of their body, है ना? So animals such as earthworm do not have special breathing organ. They breathe through the surface of their skin. Okay, so insect like ant, like bees, like housefly, है ना? Like mosquito. These insect, grasshoppers, है ना? So breath through means take air by. Tiny holes means very small opening. Called means known as spiracles. Special breathing holes in the insect is spiracles. They are found inside the insect body. So it means insects do not breathe through nose like humans. They breathe through very small holes on both sides of their body. So these holes are called spiracles. But look what is written here. Animals such as earthworm do not have special breathing organ. They breathe through surface of their skin. Insect में spiracle पाए जा रहे थे, but even these things are not found in earthworm. Earthworm do not have that spiracle or any other special breathing organ. Earthworm कैसा होता है? Soft, long. You can see it here. You can see this is earthworm. Here it is earthworm. So earthworm is long, soft worm found in soil. कहाँ पाया जाता है? In soil. Okay. एंड स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन यानी कि बॉडी पार्ट कुछ ऐसा, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, फिशेज के पास स्किल्स होते हैं, ऐसा कोई भी ब्रीथिंग ऑर्गन इसके पास नहीं है. सो अर्थवर्म डू नॉट हैव लंग्स और स्पाइरकल्स. दे ब्रेथ थ्रू देयर सरफेस ऑफ देयर स्किन. मीन्स अर्थवर्म टेक इन एयर थ्रू देयर स्किन. देयर स्किन must stay moist, slightly wet. Breathing can happen. Tell me, do you know, मैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. It is believed that there are more type of animal without backbone than animal with backbone. So scientists think that animal without backbone are more in number, more kind than the animal with backbones. So that means invertebrates are found in many varieties like ant, insect, worm, spider, snail, crab, jellyfish, etc. So पिक्चर को देखो यहाँ पर ध्यान से. स्टारफिश दिखाई दे रही है. दे लिव इन सी विद नो बैकबोन. अर्थवर्म इज देयर, है ना. अर्थवर्म इज देयर, लिव्स इन सॉइल, ब्रेथ थ्रू स्किन. बट स्नेल lives on land or wet places but have no backbones. So these diagram shows that animals without backbone lives in water, land or around the water, and they move for food, shelter and to escape from enemies, and they breathe through spiracles or through skins, you know. Now look at this, movement in some invertebrates. This is the heading, movement in some invertebrate. It means this topic explain how some animals without a backbone move from one place to another place. Movement
Movement means going from one place to another, and invertebrate is animal without backbone. So here first line you can see animals such as crab, spider. Animals such as crab, spider use their leg to move. For example, यानी कि such as means for example animal, for example crabs and spider. Crab is a sea animal with the hard outer covering and claws. Spider is eight-legged crawling animal. So they take help of their body part for walking or for changing place. So crab and spider walk or crawl with the help of their leg. Crab walk sideways, spider crawl using its leg. Now look at the second line here. Worms such as earthworm have body made up of segment which contract means come closer and expand, move apart to help them move. So long soft animal without leg is worm. Earthworm is a worm that is found in soil. Okay. And its body is divided into so many segments. Okay. Joint पार्ट यहाँ पे रिंग के थ्रू होता है. इस ये मूव कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन के थ्रू मूव करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब टू कम क्लोज और छोटा हो जाना. एक्सपेंड मतलब टू मूव अपार्ट एंड बिकम लॉन्गर. So this thing help them in the movement. So meaning क्या है? Earthworm do not have leg. Their body has many small segment or rings. So these segment contract and expand. So body become short and then become long, and by the repeating this action, the earthworm move forward. So like squeezing, scratching. इस तरीके से ये सब चलता रहता है. थर्ड लाइन क्या है? Many insect can fly because of they have wings. Insect means ant, butterfly, bees, mosquito, dragonfly. ये insect होते हैं. Fly means to move in air. उसको हम fly बोलेंगे. Wings, they have a special body part which is used to fly. So many insects can move in the air because they have wings. Example, fly, butterfly, bees, dragonfly, इनके ये use करते हैं. So all the insects have 3 pairs of leg and they used to walk, run, crow and hop. So 3 pair मतलब 3 set of 2 leg. एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, ऐसे 6 लेग होते हैं टोटल. वॉक करना मतलब नॉर्मली वॉक करना, चलना, मूव करना. रन क्या होता है? टू मूव फास्ट. क्रोल होता है टू मूव क्लोज टू द ग्राउंड, वो होता है क्रोल. होप अपने पैर शॉर्ट. होप मतलब टू जंप इन अ शॉर्ट लीप you can say. So the meaning here is every insect has 6 legs and these legs help the insect to do many type of movement like ant walk, cockroach run, and some insect crawl and grasshopper hops. Grasshopper तो देखा होगा ना, वो कैसे hop करता है? Yes, now I think you get that thing. So now look here in the picture. Earthworm move using their segment-rooted body. It is written here. So earthworm move by contracting and expanding their body segments. Ant move with the help of leg. Ant uses 6 legs to walk and climb. And this is my favorite, जिसको हम helicopter बोलते थे, but it is dragonfly. हमारे लिए helicopter था. So dragonfly uses wings for flying in the air. Now we have section 1, review. To name some invertebrates, to understand that animal can be grouped based on the absence or presence of backbone. Okay. To name some invertebrates, to understand that animal can be grouped on the basis of presence and absence. Who am I? You have to name these animals. Look at the picture and write my name. So the question is saying you should learn the name of some invertebrates. Animals are divided into group depending on whether they have backbone present in them or absent. ठीक है, तो like crabs के पास लेग होते हैं, invertebrate है. spider के पास लेग है, invertebrate है. earthworm segmented body है, invertebrate है. ant लेग है,
और इन्वर्टिब्रेट है ड्रैगन फ्लाई, इन्वर्टिब्रेट है। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स है इनके पास, यानी कि टोटल 6 लेग है इन टोटल। ओके, पहले जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 1, काउंट करो लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग दिखाई दे रहे हैं। तो स्पाइडर के 8 लेग होते हैं, तो इसलिए ये स्पाइडर है। क्या है ये? स्पाइडर है। सेकंड क्या है हमारे पास? इंसेक्ट है जिसके 1 2 3 4 5, एक दिख नहीं रहा इसमें, यहाँ पे एक और लेग होगा। ओके, तो वो है कॉकरोच। क्या है ये? COCKROCH, कॉकरोच। स्नेल है, सॉफ्ट बॉडी है सेल के साथ। ये है सॉफ्ट बॉडी, ये सेल है, हार्ड कवरिंग होती है। तो ये है स्नेल। क्या है ये? स्नेल। नेक्स्ट देखो एल। देखो मेरा पेन थोड़ा लैग करता है और इतने पैसे मेरे पास है नहीं, तो इसे से काम चला लेते हैं जब तक मेरा बजट ना बन जाए नया पेन लेने का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो क्या है ये? बताओ 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 बताओ। आंट। क्या है ये? आंट स्मॉल इंसेक्ट होती है, तो इसका नाम है आंट। नेक्स्ट अर्थवर्म, EARTH, वर्म, अर्थवर्म। स्टार फिश, ये सी के अंदर रहती है, इसका नाम क्या है? स्टार फिश। सो विच वन ऑफ दीज लिव इन वाटर? इनमें से कौन सा पानी में रहता है? स्टारफिश। विच वन हैज सेल? सो स्नेल हैज द सेल। वेब, विच वन स्पिन्स अ वेब? जाला कौन बनाते हैं? स्पाइडर बनाती है। विच वन लिव इन सोइल? अर्थवर्म लिव्स इन सोइल। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं हम। नाउ लुक हियर, व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? व्हाट आर vertebrates? Animals such as fish, bird, amphibian, reptile and mammal are group of animals that have backbone. ये वो group of animals है which have backbone. कौन कौन सा यहाँ पे बताया गया है? फिश के पास भी बैकबोन होती है, एंड बर्ड्स के पास भी, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, इन सब के पास बैकबोन होती है। एनिमल दैट हैव अ बैकबोन उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। सो फिश आर द एनिमल्स विद बैकबोन दैट लिव इन वाटर। फिश एक ऐसा एनिमल है जिसके बैकबोन होती है और जो पानी में रहता है। फिश एक ऐसा एनिमल है who have backbone and lives in the water. Different type of fishes are there in the river. नदी में, लेक में, पॉन्ड में, ओशन में अलग अलग तरीके की फिशेस होती है। फिश have scales, fins and gills. फिशेस के पास क्या होती है? Scales, fins and gills. So fins help fish to swim. फिन किस चीज में मदद करते हैं? स्विम करने में फिश की मदद करते हैं। गिल्स हेल्प देम टू ब्रेथ अंडर वाटर। पानी के नीचे सांस लेने में गिल्स मछलियों को मदद करते हैं। शार्क, टूनास, ट्राउट्स, गोल्ड फिश, ये फिशेस के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds are the animal with a backbone that have feathers, wings and lay egg. Birds वो एनिमल होते हैं जिनके बैकबोन होती है। क्या होती है? बैकबोन होती है, जिनके फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, विंग्स होते हैं और वो अंडे देती है। ज्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं, लेकिन सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड ईमू, ये उड़ नहीं सकते। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है ईमू, ये उड़ नहीं सकता। स्पैरो, ईगल, क्रो, ये सब बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, एम्फीबियंस आर द एनिमल विद द बैकबोन दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एम्फीबियन वो एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। दे डू नॉट हैव स्केल, इनके पास स्केल्स नहीं होते, फेदर्स भी नहीं होते और इनकी बॉडी पर हेयर भी नहीं होते। ह्यूमंस की बॉडी पे हेयर होते हैं ना, लेकिन एम्फीबियन की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते हैं। जैसे कि फ्रॉग की बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं, टोड की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ये एम्फीबियन के एग्जाम्पल है।
नाउ क्रिश, यू हैव टू टेल मी, ये जो फ्रॉग दिख रहा है आपको हाँ, और ये टोड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसके नीचे ये क्या दिख रहा है नीचे चटाया? ये मिट्टी है। सो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है और इस पे मॉइस्चर होता है। ठीक है, ये जो फ्रॉग होता है ना वो पानी के आसपास रहता है, लिव्स मोस्टली इन और नियर वाटर, या तो पानी के अंदर रहता है या पानी के आसपास रहता है। कौन? फ्रॉग। ठीक है, और वो तो पानी के अंदर भी रह सकता है। इसके जो पीछे वाले लेग है, हाँ पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के आसपास वाले एरिया में भी रह सकता है। पीछे वाले लेग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसके लॉन्ग बैक लेग होते हैं, इसके काफी लंबे पैर होते हैं ताकि ये लंबी जंप लगा सके। पीछे वाले जो लेग है फ्रॉग के वो लंबे होते हैं और आगे वाले छोटे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, और इसके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जो इसको स्विमिंग करने में मदद करते हैं। बॉडी इसकी स्लिम होती है, स्मूथ लुकिंग होती है। ठीक है, अब टोड के बारे में जानते हैं। टोड, ये है टोड, फ्रॉग नहीं है। ये क्या है? टोड। हाँ, तो फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंस है? फ्रॉग का मैंने आपको बता दिया, अब टोड को ध्यान से देखो। टोड की ड्राई, सूखी और रफ स्किन होती है। ठीक है, ड्राई एंड रफ, बम्पी स्किन भी है। ये बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ, छोटे 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 छोटे, ये बम्प्स। हाँ, तो इसकी बम्पी स्किन होती है, रफ और ड्राई स्किन होती है टोड की। ये ज्यादातर लैंड पे ही रहता है, टोड पानी के अंदर नहीं रहता। ठीक है, मोस्टली, ज्यादातर जमीन पे रहता है और इसके पैर छोटे होते हैं, शॉर्ट लेग होते हैं इसके। ठीक है, इट कैन वॉक और हॉप। इसके जो लेग है ना वो फुल्ली वेब्ड नहीं होते क्योंकि इसको स्विमिंग नहीं करनी होती। इसकी जो बॉडी है वो राउंड और हैवी होती है, मोटा होता है ये। ओके, किसके कंपैरिजन में? फ्रॉग के कंपैरिजन में। अब समझ गए फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंस है? अब आगे चलते हैं रेप्टाइल्स। सिट हियर। रेप्टाइल्स, reptiles are the animal with a backbone that mainly live on land. Some reptiles such as crocodile live on land as well as in water. The bodies of the reptile are generally covered with hard and dry scale, and the crocodile and snake are example of reptiles. अब बताओ मुझे, रेप्टाइल वो एनिमल होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ओके, और ये ज्यादातर जमीन के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, मेनली लिव ऑन लैंड। सम रेप्टाइल सच एज क्रोकोडाइल, पानी में। हाँ, क्रोकोडाइल लिव्स बोथ लैंड और वाटर। लैंड पे भी रहता है क्रोकोडाइल और पानी में भी रहता है। इनकी जो बॉडी है वो ड्राई और हार्ड स्केल से कवर होती है। ओके, द बॉडी इज यूजुअली कवर्ड विद ड्राई एंड हार्ड स्केल्स। और कुछ एग्जांपल बताओ। स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, ये सब रेप्टाइल का एग्जांपल है। सो रेप्टाइल्स आर द एनिमल विद सांप भी पानी में रह सकता है। हाँ, तो ये क्या है? मेनली लेकिन जमीन पे ही रहेगा। ओके, और पानी में भी कभी कभी हाँ। कुछ स्पीसीज, नॉट ऑल स्पीसीज। Now mammals. Mammals are the vertebrate that feed their young one with mother milk. Mammals ऐसे vertebrate होते हैं जो अपने बेबीज को माँ का दूध पिलाते हैं। So most mammal give birth to young one. जो mammals होते हैं वो सीधे बच्चा पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते। ओके, the bodies of the mammal are generally covered with hair and फर। यहाँ पे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं गैया के, इस काऊ के बॉडी पे फर और हेयर्स मिलेंगे आपको। इंसान के शरीर में भी और डॉग के ऊपर भी बाल मिलेंगे। तो जो मैमल्स होते हैं जनरली नॉट फॉर एवरी मैमल, जनरली लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरली कवर्ड विद हेयर और फर, लाइक कैट, काउ, एलिफेंट, बैट्स, बेल, डॉग, ये सब एग्जाम जनरली मतलब नॉर्मली। तो गई तो मैं कह रही हूँ जनरली, यानी कि हर एक मैमल के शरीर पे बाल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर मैमल्स के शरीर पे बाल होते हैं। ओके, दिस इज डॉग, डॉग के शरीर पे हेयर्स होते हैं, फर होते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हमारे भी शरीर पे फर, बाल है, हेयर्स है।
तो ज्यादातर मैमल, ह्यूमन भी है, वो भी मैमल्स है। ज्यादातर मैमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, सम ऑफ दीज एनिमल हैव स्पेशल वे टू ब्रेथ एंड मूव। इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए, फेफड़े जिनको बोलते हैं। मूव करने के लिए पैर होते हैं। सो एनिमल ऑन लैंड ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो जमीन पे रहने वाले जानवर है वो हवा में से ऑक्सीजन लेकर सांस लेते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर ब्रेथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। जो पानी में रहते हैं ना मैमल्स, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी मदद से सांस लेते हैं। ये है रियल वर्ल्ड कनेक्ट। ऑल्दो वेल्स लुक लाइक फिश, दे आर मैमल्स, दे गिव बर्थ टू यंग वन। जबकि जो वेल्स है फिश के जैसे दिखती है, लेकिन फिर भी वो मैमल है और बच्चों को जन्म देती है। सो क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होते, दे ब्रेथ एयर यूजिंग लंग्स। जो वेल्स होती है ना, वो लंग्स अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेती है। सरफेस पानी के ऊपर आती है वो सांस लेने के लिए, वेल्स। और वो बच्चे को बर्थ देती है। जैसे इंसान अपने बच्चे को पैदा करता है, वैसे वेल्स भी बच्चे पैदा करती है। अंडे नहीं देती है वेल्स। ओके, आगे है हमारे पास बैट। बैट आर मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट भी एक मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। दे कैन फ्लाई, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम मिल्क। सो फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स by taking in water and absorbing oxygen. Although whale looks like fish, they are mammal because they breathe air and give birth to young one. So bat are the mammals that can fly. जो उड़ भी सकते हैं वो मैमल्स हैं। अब देखो ब्रेथिंग, वर्टिब्रेट्स में सांस कैसे लिया जाता है। फिन्स है, हमारे पास बर्ड्स है। देखो फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। गिल्स होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं 3 एरो यहाँ पर, गिल्स। ये जो जगह है ना, रेड रेड रेड, ये है गिल्स। यहाँ से वाटर अंदर लिया जाएगा और इसके अंदर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो फिश अपने अंदर ले लेगी। ऑल्दो जो हमारी वेल है उसके पास गिल्स ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसे बाहर आना पड़ता है। तो देखो अभी यहां से वेट, हाँ, पानी यहां से माउथ के थ्रू पानी लेगी फिश, ठीक है, और फिर ये पानी गिल्स के थ्रू पास होएगा। ये फिल्टर की तरह काम करेंगे। मुंह से पानी लिया, द फिश टेक वाटर इन थ्रू देयर माउथ एंड वाटर पासेस ओवर द गिल्स। अब ये जो पानी है इन गिल्स से पास हुआ एंड गिल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब जो गिल्स है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ऑक्सीजन गोज इनटू ब्लड। अब जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। किसके ब्लड के अंदर, फिश के ब्लड के अंदर, और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड एंड रीचेस ऑल बॉडी पार्ट। फिश ब्रेथ इन वाटर यूजिंग गिल्स। ओके, अब है एम्फीबियन सच एज फ्रॉग ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। सो इन वाटर ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। पानी के अंदर जब रहेगा तो फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से सांस लेगा। लेकिन जब वो जमीन पे होता है, लेकिन जब फ्रॉग जमीन पे होता है तो उसके पास होते हैं लंग्स, LUNGS, लंग्स। जैसे इंसानों के पास फेफड़े होते हैं ना, वैसे फ्रॉग के पास भी होते हैं। जब वो जमीन पे होता है तो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, लेकिन पानी में होता है तो अपनी नम स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा सांस लेता है। रेप्टाइल एंड बर्ड्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। रेप्टाइल और बर्ड्स के पास भी लंग्स होते हैं, उसके थ्रू ही सांस लेते हैं। मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। मैमल्स के पास भी लंग्स होते हैं, यानी इंसानों के पास, बैट्स के पास, व्हेल के पास लंग होते हैं, वो उनके थ्रू सांस लेते हैं। द एयर इज ब्रेथ इन थ्रू द नोज। नाक की मदद से सांस को अंदर लिया जाता है एंड टेकन टू द लंग्स। फेफड़ों तक ले गए जाते हैं, एयर ले जाई जाती है। इनसाइड द लंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन टू द ब्लड। जो एयर के अंदर ऑक्सीजन थी वो अब खून में सप्लाई कर दी जाती है लंग्स के अंदर। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो खून के अंदर थी वो एयर में वापस भेज दी जाएगी लंग्स के अंदर एंड दिस एयर इज ब्रेथ आउट थ्रू द नोज। नाक की मदद से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकाल दी जाएगी। सो breath through their lungs, mammals breathe through their lungs and the air is breathed through the nose and taken
inside the lungs and the oxygen from the air is taken to the blood. At the same time, carbon dioxide from the blood passed into the air inside the lungs and the air is breathed out from the nose. Now, movement in vertebrates. जिनके पास रीढ़ की हड्डियां होती है उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, वो कैसे चलते फिरते हैं. सो फिशेस हैव फिन. फिशेस के पास फिन होता है. टेढ़ा है कैसे? So fish have fin. फिश के पास फिन होते हैं एंड अ पावरफुल टेल. एक मजबूत पूंछ होती है. टू मूव इन वाटर. वाटर में मूव करने के लिए. When in water, amphibians such as frog use their webbed feet to swim. जब पानी के अंदर होता है तो जो ये मेंढक है, फ्रॉग है, वो अपनी वेब्ड जाले नुमा फिट का यूज करता है टू स्विम. तैरने के लिए अंडर वाटर. अंडर वाटर तैरने के लिए वो अपने जाले नुमा फिट का यूज करता है. ओके, सो मूवमेंट इन सम वर्टिब्रेट्स. फिश हैव फिन्स. फिश के पास फिन्स होते हैं एंड एक पावरफुल टेल होती है टू मूव इन वाटर. पानी में मूव करने के लिए. When in water, जब वो पानी में होते हैं, एम्फीबियन सच एज फ्रॉग. एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग यूज करता है देयर वेब्ड फीट टू स्विम. अपने जाले नुमा पैर का. जब वो स्विम करना चाहता है तो अपने जाले नुमा पैर की मदद से स्विम करते हैं. When in land, they uses their leg. जब वो जमीन पे होते हैं वो अपने लेग का इस्तेमाल करते हैं हॉप करने के लिए. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह कूदने के लिए वो अपने लेग का यूज करते हैं. रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, वो अपने 4 शॉर्ट लिम्ब को क्रॉल करने में ग्राउंड के ऊपर यूज करते हैं. अ स्नेक डू नॉट हैव लिम्स. चलने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता. स्नेक के पास लिम्स नहीं होते. इट यूजेस इट्स बॉडी मसल्स. वो अपनी बॉडी मसल्स का यूज करता है एंड स्केल्स का यूज करता है मूव करने के लिए. टर्टल हैव फीट शेप्ड लाइक पेडल्स. टर्टल हैव फीट. उनके पास पैर होते हैं पैडल के जैसे जो उन्हें अंदर मूव करने में मदद करते हैं. Birds have wing to fly. Birds के पास wings होते हैं fly करने के लिए. They have 2 legs with which they can walk or hop about on the ground. Birds के पास wing होते हैं fly करने के लिए, उड़ने के लिए. उनके पास 2 leg भी होते हैं जिसकी मदद से वो walk कर सकते हैं, hop कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर. कुछ जो बर्ड होते हैं जैसे कि ईमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये जो 3 बर्ड है ना, ईमू, ऑस्ट्रिच और कीवी, ये उड़ नहीं सकते. They can't fly at all. Flightless birds such as ostrich have strong legs that help them run very fast on the ground. जो उड़ नहीं सकते उन बर्ड्स के पास बड़े मजबूत लेग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं ताकि वो रन कर सके, भाग सके ग्राउंड के ऊपर. Birds such as penguin uses strong flippers to swim. Penguins होते हैं उनके पास flippers होते हैं ना, वो स्विम करने के लिए उनका मदद लेते हैं. They uses their hind leg. पीछे वाले जो पैर होते हैं उनकी मदद से वो वॉक कर सकती है पेंगुइन्स लैंड जमीन के ऊपर. अब मैमल यानी कि इंसान हैव लेग दैट हेल्प देम रन. जो उन्हें रन करने में, वॉक करने में, हॉप करने में, जंप करने में, क्रॉल करने में और बाकी सारे मूवमेंट करने में मदद करते हैं. अब हमारा सेक्शन रिव्यू 2 शुरू होता है. इसमें लिखा हुआ है टू नेम सम वर्टिब्रेट टू अंडरस्टैंड दैट एनिमल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ बैकबोन. एनिमल को हम ग्रुप कर सकते हैं इस बेस पे कि उसके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है या नहीं है. तो आपको बताना है हु एम आई, मैं कौन हूँ. राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना है. एंड द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आई एम पार्ट ऑफ, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है. जैसा कि यहाँ पर फ्रॉग के लिए एम्फीबियन लिखा गया है. सेकंड बताओ ये क्या है. सेकंड पिक्चर को देखो और जल्दी से बताओ कि वो क्या है. यस, यू आर करेक्ट. दैट इज, बताओ 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 ये क्या है भाई. यस, यू आर राइट, इट इज स्नेक. क्या है ये? स्नेक. ओके, स्नेक किस कैटेगरी में से आता है? रेप्टाइल्स. क्या होता है ये? क्या होता है? रेप्टाइल्स. स्नेक क्या होते हैं?
नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या है, पेंगुइन। क्या है ये, पेंगुइन, PEN, GUIN, पेंगुइन। पेंगुइन बर्ड्स की कैटेगरी का होता है। किसकी कैटेगरी का है, बर्ड्स कैटेगरी का है। अगला है हमारे पास टर्टल। टर्टल रेप्टाइल्स होते हैं। टर्टल क्या है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। सो फ्रॉग एम्फीबियन है, स्नेक रेप्टाइल है, पेंगुइन बर्ड है, टर्टल अगेन रेप्टाइल है। अब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स है यहाँ पर, क्या कीवर्ड है, एनिमल विदाउट अ बैकबोन, उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और एनिमल्स विद द टाइनी होल्स थ्रू विच दे कैन ब्रेथ, वो इंसेक्ट होते हैं। और वर्टिब्रेट क्या होते हैं, एनिमल विद अ बैकबोन, वो वाले एनिमल जिनके पास एक बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, एनिमल विद द बैकबोन इज वर्टिब्रेट्स। एंड स्पाइरकल्स टाइनी होल्स होते हैं जिनके थ्रू हम सांस ले सकते हैं। What is written here? To recall features of animal, what do you think? Think and write. You can draw picture too. If I could be any type of animal, what type of animal would I like to be? So you can draw here. Bye. Now, MCQ type question. This animal is a vertebrate. ये animal एक vertebrate है, यानी कि इसके पास बैकबोन है। देखो, ग्रास पॉपर के पास नहीं होती, स्पाइडर के पास भी नहीं होता, स्नेल के पास भी नहीं होती, तो स्नेक इज द करेक्ट आंसर। रीढ़ की हड्डी स्नेक के पास होती है। किसके पास होती है, स्नेक के पास होती है। रीढ़ की हड्डी स्नेक के पास होती है। द एनिमल ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवर्म अपनी स्किन की मदद से सांस लेता है। द एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ लेग, आंट के पास लेग होती है, इसकी मदद से वो चल सकती है। बाकी ये तो फ्लाई करेगा, ये स्किन की मदद से मूव करेगा, फिश फिन्स वगैरह इनकी मदद से मूव करेगा। रेप्टाइल का एक एग्जांपल है हमारे पास, क्रोकोडाइल होता है। दिस एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ वेब्ड फीट, जाले नुमा पैरों की मदद से मूव कर सकता है पानी में। फ्रॉग, ठीक है। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग। शार्क, शार्क, शार्क क्या है, एक फिश है, लिव इन वाटर। ईगल क्या है, एक बर्ड है, फ्लाइज इन द स्काई। फ्रॉग क्या है, रेप्टाइल। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, लिव्स इन लैंड एंड वाटर। स्नेक, स्नेक क्या है, डॉग, डॉग मैमल है, डॉग मैमल है। स्नेक, स्नेक स्नेक स्किन रेप्टाइल है, हिज स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी पे, इसलिए रेप्टाइल है। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। ईगल क्या है, ईगल बर्ड है, फ्लाई करेगा स्काई में। शार्क क्या है, एक फिश है, पानी के अंदर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू देयर टाइनी होल, जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। एम्फीबियन एनिमल विद द बैकबोन दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं लेकिन उनके पास बैकबोन भी होती है। तो इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं हम उनको, स्पाइरेकल, SPIRACLES, spiracles. Okay, animal with a backbone that live in water, fish. A backbone, live in water, fish क्या होती है, फिश होती है। एक एनिमल जो उसका बैकबोन भी हो और वो पानी में रहे, वो फिश होती है। एनिमल विद अ बैकबोन दैट हैव फेदर्स, विंग, लेज एग आर कॉल्ड बर्ड्स। एनिमल जिसके पास बैकबोन है, जिसके पास फेदर है, विंग्स है, अंडे भी देते हैं, उसको बर्ड्स बोलेंगे, बर्ड्स। ओके, मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर, मैमल किसके थ्रू सांस लेते हैं, मैमल लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। स्नेक इज अ रेप्टाइल दैट डज नॉट हैव, स्नेक एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास लेग नहीं होते, ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास लेग्स नहीं है। ओके, ओड वन आउट सर्कल करना है। क्रैब, स्टारफिश, जेलीफिश, गोल्डफिश। गोल्डफिश वर्टिब्रेट है, बाकी सब इनवर्टिब्रेट्स। गोल्डफिश वर्टिब्रेट है। ओके, इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जेलीफिश के नहीं होती, स्टारफिश के भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, क्रैब के पास भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। स्पैरो, पेंगुइन, ईमू, बैट। बर्ड, 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 मैमल। स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल। फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबियन है, बाकी सब रेप्टाइल है, ये सब रेप्टाइल है, फ्रॉग एम्फीबियन है।
फिश, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट। इंसेक्ट देखो, insect is an invertebrate, other are vertebrates. Look carefully to the picture and name these animal. What group of animal do they belong to? How right? Now write how they are similar and how they are different. ओके, तो भाई ये फिश है। ओके, इसकी टाइप भी फिश है। सेकेंड हमारा देखते हैं, क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल है। सो दे आर सिमिलर एंड दे आर डिफरेंट। कैसे? तो यहाँ पर क्रोकोडाइल और फिश का आपको बताना था, तो हम लिखेंगे कि दोनों ही एनिमल्स हैं, दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि दोनों के पास बैकबोन है। डिफरेंस ये है कि फिश वाटर में रहती है, क्रोकोडाइल लिव्स ऑन द लैंड और इन। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स एंड द क्रोकोडाइल ब्रेथ थ्रू लंग्स। फिश गिल्स की मदद से सांस लेती है और क्रोकोडाइल लंग्स की मदद से। फिश के पास फिन्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स के पास लेग होते हैं मूव करने के लिए। फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, यानी कि सॉफ्ट और वेट बॉडी होती है उसकी। क्रोकोडाइल की बॉडी हार्ड ड्राई स्केल होते हैं उसके ऊपर। तो फिश है, फिश कैटेगरी फिश टाइप से आती है। दूसरा क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल टाइप से आता है। सिमिलर ये है कि दोनों वर्टिब्रेट्स है, और डिफरेंस ये है हैबिटेट, ब्रेथिंग, बॉडी पार्ट इनके अलग अलग है। अब हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर स्पाइरेकल्स? सो राइट डाउन, स्पाइरेकल्स आर टाइनी होल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट थ्रू विच दे ब्रेथ। Spiracles are the tiny holes on the body of insect through which they breathe. Spiracles are the tiny holes on the body of insect through which they breathe. Second is, list the 5 type of vertebrates. There are 5 type of vertebrates. First, fish. Second, amphibians. Third, reptiles. reptiles, reptiles. Fourth is birds. Fifth is mammal. So fish, amphibian, reptile और birds और mammal, ये 5 vertebrates है। Name any 2 reptile. 2 reptile का नाम बताना है। Snake and lizard. You can also write crocodile and turtle. Sorting animal. Sort this animal by placing them in correct group. Write V for vertebrates, I for invertebrates, R for reptile and F for fish, A for amphibian and B for bird and M for mammals. तो human क्या है? Human is vertebrate as well as M for mammal. So human हुआ V और M दोनों, यानी कि वर्टिब्रेट भी है और मैमल भी है। ओके, जो ह्यूमन है, इंसान है, वो वर्टिब्रेट भी होता है और मैमल भी होता है, लेकिन जो स्पाइडर है वो इनवर्टिब्रेट्स होती है, आई यानी कि। यानी कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। स्पाइडर की हड्डी नहीं होती, इसलिए वो इनवर्टिब्रेट्स है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार फिश है हमारे पास। स्टार फिश, उसके पास भी हड्डी नहीं होती, तो इसलिए वो भी इनवर्टिब्रेट्स है। हड्डी नहीं होती इसलिए वो भी इनवर्टिब्रेट्स है। अब टर्टल देखो, वर्टिब्रेट है। टर्टल क्या है? वर्टिब्रेट है, और साथ साथ में टर्टल रेप्टाइल भी है। क्रो, क्रो क्या है? बर्ड है, वर्टिब्रेट है, हड्डी होती है इसलिए वर्टिब्रेट है। पेंगुइन, पेंगुइन क्या है? बर्ड है, पेंगुइन एक बर्ड है। हाँ भाई, बर्ड है भाई, और वर्टिब्रेट है। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ, ग्रास ऑपर इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, और शार्क, शार्क क्या है? शार्क वर्टिब्रेट में फिश है। ओके, डॉग वर्टिब्रेट में मैमल है। जेलीफिश इनवर्टिब्रेट है। बैट वर्टिब्रेट में मैमल है, बैट वर्टिब्रेट में मैमल है। स्नेक
वर्टिब्रेट है और रेप्टाइल है। फ्रॉग वर्टिब्रेट हड्डियों वाला एम्फीबियन है। वेल हड्डियों वाली मैमल है, वर्टिब्रेट वाली मैमल। स्पैरो वर्टिब्रेट है पर बर्ड है। ड्रैगन फ्लाई इनवर्टिब्रेट है, हड्डी नहीं होती इसलिए इनवर्टिब्रेट है। काऊ क्या है? वर्टिब्रेट में मैमल है। ठीक है। अर्थवॉर्म इनवर्टिब्रेट है। ऑस्ट्रिच वर्टिब्रेट में बर्ड है। क्रैब इनवर्टिब्रेट है। लिजर्ड वर्टिब्रेट में रेप्टाइल है, वर्टिब्रेट में रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल वर्टिब्रेट में रेप्टाइल है। Difference between invertebrates and vertebrates with 4 example of each. How are amphibian different from reptile? How do mammals such as human breathe? And write few example of how fish breathe in water. We need to do. So as you know, vertebrate have backbone, cold-blooded, obtain oxygen in water through gills and egg lay करते हैं fishes में. Okay. So difference between invertebrate and vertebrate with 4 example of each. Vertebrate have backbone, body is more developed. Example है fish, frog, bird and dog. Difference हमने बताया कि they have backbone. Vertebrates have backbone. Vertebrate body is more developed. Example of vertebrate is fish, frog, bird and dog. And invertebrate, no backbone. Do not have backbone. Invertebrate do not have backbone. Invertebrate body is usually soft and simple. Invertebrate example is earthworm, jellyfish, spider or starfish. So vertebrate are the animal with the backbone such as fish, frog, bird, dog. Invertebrate do not have backbone such as earthworm, jellyfish, spider, starfish, you know. Okay, how are amphibian different from reptile? Amphibian reptile से किस तरीके से different है? Amphibian live on land and water. Amphibian जमीन पे और पानी में रहते हैं और amphibian की जो skin होती है is moist and smooth. Amphibian skin is moist and smooth. Example is frog. And reptile mostly land पे रहते हैं. Reptile mostly live on land. Reptile skin is dry and scaly. Reptile example of reptile is snake and lizard. So amphibian have moist skin and can live on both land and or in water, while reptile have dry scaly skin, mostly live on land. How do mammals such as human breathe? Mammals breathe through lung. Air enter through their nose and oxygen goes into the blood and the carbon dioxide is breathed out. So mammals such as humans breathe through lungs. They take in oxygen through the nose, give out carbon dioxide. How do fish breathe in water? Fish take in water through mouth. Water passes over gills. Gills absorb oxygen. Water flows out. So fish breathe through gills. They take in water through the mouth and gills absorb oxygen from the water. Can a fish survive outside the water and why? No, because fish breathe through gills which need water to take oxygen. So D. Project work is there, you need to do and discuss and answer. Okay, so do this and comment the result. सबसे पहले है स्किल क्राफ्ट प्रोजेक्ट वर्क. Migrating birds move from one place to another place in search of food or for survival. Make a report on migrating bird in a scrapbook. Support your finding with picture and also find out when and why World Migratory Bird Day is observed. Okay. देखो migrate करते हैं. Birds move from one place to another place in search of food and suitable weather. They migrate to survive during extreme cold or heat. So example is Siberian crane or bar-headed goose. So example, Siberian crane, bar-headed goose. So World Migratory Bird Day is observed twice a year in May and on October to create awareness about protecting migratory bird and their habitats.
Why it is easy to study animal when they are grouped? Discuss and answer. Why it is easy to study about animal when they are grouped? Discuss in class why we need to group animal. So it help us understand animal easily. हमें animals को easily understand करने में मदद करता है. We can compare similarity and differences. हम similarity और differences को compare कर सकते हैं. It make learning and remembering simple. So grouping animal makes study easier because it help us understand their similarity and differences and characteristics in a simple way. Now connect to the life. Some animals blend easily with their ground and are difficult to spot. For example, the color and shape on the body of a tiger blends with the tall brown grass of the forest. And find out more such example, write about them in your notebook. So some animal blend. Some animal blend with their surrounding to stay safe. This is called camouflage. So tiger blends with the forest grass. Chameleon changes the color, and stick insect look like the twig. So some animal use camouflage to hide from enemies. For example, tiger blend with grass, and a chameleon changes the color to match its surrounding. Here, self check. Write 3 example of each vertebrate and invertebrate. ये आप कर पा रहे हो कि vertebrate का example dogfish and bird होगा और invertebrate का example earthworm, spider, jellyfish, etc. हो सकता है. Okay. वर्टिब्रेट्स के पास लंग्स और गिल्स होते हैं. इनवर्टिब्रेट्स के पास स्पाइरकल और स्किन्स होती है. मूवमेंट के लिए फ्यू सेंटेंसेस लिखने हैं ना. मूवमेंट के लिए फिश स्विम करती है, बर्ड फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट रोल करते हैं या फिर फ्लाई करते हैं. 5 वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है. तो आई थिंक यू कर पा रहे हो. तो आपका सभी में टिक है. ये आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया, सेल्फ चेक हो गया. इतना आता है तो काफ़ी है. ठीक है. आगे एक बार इसको रिव्यू द यूनिट. चैप्टर 2. वी कैन ग्रुप द एनिमल इन मैनी वे. सम एनिमल हैव अ बैकबोन जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, वाइल अदर डू नॉट हैव, उनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं. इनवर्टिब्रेट ब्रेथ थ्रू स्पाइकल. इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो स्पाइरकल की मदद से सांस लेते हैं, जैसा इंसेक्ट में होता है. सरफेस ऑफ द स्किन, जैसे कि अर्थवर्म अपनी स्किन के सरफेस से सांस लेते हैं. इनवर्टिब्रेट मूव बाय यूजिंग देयर लेग. इनवर्टिब्रेट अपने पैर की मदद से मूव करता है, जैसे कि स्पाइडर मूव करती है. इनवर्टिब्रेट विंग्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट के विंग होते हैं. फिश, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं. ओके. ब्रेथिंग इनवर्टिब्रेट. फिश हैव गिल्स. फिश के पास सांस कैसे लेते हैं? फिश के पास गिल्स होते हैं. फ्रॉग एम्फीबियन होता है, मॉइस्ट स्किन और लंग्स के थ्रू सांस लेता है. ओके. रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स सब के पास लंग होते हैं. वर्टिब्रेट में मूवमेंट कैसे होता है? फिश के पास फिन होती है, टेल होती है, उससे मूवमेंट हो सकता है. फ्रॉग के पास वेब्ड फिट लेग है, जालीनुमा पैर है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो सकता है. लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल हैव शॉर्ट लिम्स. लिजार्ड और क्रोकोडाइल के पास छोटे छोटे लिम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो मूव कर सकते हैं. उनके बॉडी के कंपैरिजन में बात हो रही है. टर्टल हैव पैडल शेप्ड फिट. टर्टल के पास पैडल शेप्ड फिट होता है. स्नेक के पास कोई लिम्स नहीं होते, लेकिन वो अपनी बॉडी की मदद से मूव कर सकता है. बर्ड्स हैव विंग. बर्ड्स के पास विंग होते हैं. फ्लाइटलेस जो बर्ड होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच के पास स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं, तो वो चल सकते हैं. कुछ बर्ड्स जैसे कि पेंगुइन, उनके पास स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स होते हैं. मैमल्स के पास पैर होते हैं, ह्यूमन के पास पैर होते हैं ना. Okay, now developing scientific vocabulary. Fish breathe through gills. Animal with a backbone is vertebrate. Animal without backbone is invertebrate. Turtle have feet that are shaped like webbed pedals. Birds such as penguin, वो किसका यूज करते हैं? Strong flippers to swim. Are the animal with a backbone that can live in water as well as in land. ये है amphibian. Are the animal with a backbone that can live in water as well as on land. Now frog breathe through this when on land. lungs के थ्रू सांस लेता है जब जमीन पे होता है. fish breathe through this, गिल्स के थ्रू सांस लेती है. चैप्टर ओवर नहीं, अभी बचे रहा है. insect breathe through this, स्पाइडरकल की मदद से. earthworm स्किन की मदद से. ओके.
Now you need to complete this type of animal. Invertebrate, vertebrate. Invertebrate के 5 एग्जाम्पल लिख देना, वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप लिख के फिर वन का वन एग्जाम्पल लिख देना. ओके, इसको ये आपका होमवर्क है. You need to complete this. Okay. Now this you need to do in your notebook. और चेक करने के लिए आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. You can comment कि मैम मुझे अपना ये चेक करवाना है, मैंने जो कॉन्सेप्ट मैप बनाया है और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन करे हैं. प्लीज़ हैव अ लुक. So now I am leaving this session. Thank you so much for listening to me. You like this video.